Today we'll discuss the beneficial interest, the rules, the concept. Because अभी सभी सुने होंगे ना 13 जून को the ministry has come out with the rules notifying the SBO rules, the significant beneficial ownership rules. और उसी को लेकर लोगों में बहुत confusion है कि what exactly it is. So we'll try to understand today that what exactly the significant beneficial ownership means and what are the compliances required in respect of the same. In short, if you ask me, this SBO concept is more or less, you can say, a closely nexus with the Benami transactions. The concept behind this beneficial interest is to find out who is the owner. जैसा हम लोग होता है ना, कहीं किसी और ने लेकर हमको कोई प्रोडक्ट दिया किसी और का, और हम लोग को पता नहीं वो किसी और ने भिजवाया है. जब आप एक्चुअल पता करो कि ये किसने भिजवाया है, तो we will come to know that somebody else has gifted you this one. Clear? Means who is the actual owner. Say for example, a company A Limited holds 60% in B Limited. Now you will say कि sir, company A Limited is a member holding 60% in a B Limited. अब लॉ जो बोलता है, लॉ बोलता है B Limited में A Limited की होल्डिंग है. Now let's find out who is the actual beneficial owner. Means ये beneficial interest किसका है? That means to find out who is the having beneficial interest in A Limited. The moment you get to know that who is the person, natural person having significant interest, or you can say beneficial interest in A Limited, will be constituted as a significant beneficial owner in B Limited. सर एक बार समझे नहीं यार क्या बोले आप? ये बोलता है B Limited में A Limited होल्ड कर रही है 60%. नाउ यू फाइंड आउट, बिकॉज ए लिमिटेड तो एक कंपनी है, आपको देख के ये लगेगा कि कंपनी है सर, ये तो कंपनी है ए लिमिटेड. द लॉ सेज नाउ यू फाइंड आउट हु इज द एक्चुअल ओनर इन द ए लिमिटेड. क्लियर? दैट मीन्स द ओनर इन द ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट स्टेक इन द बी लिमिटेड, एंड देयरफॉर इन ए लिमिटेड जो भी आपका होल्ड कर रहा होगा वो बन जाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर फॉर बी. दैट इज व्हाट द रिलेशन इज, to find out who is the actual owner. तो लॉ बोलता है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होल्ड करता है. नाउ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इटसेल्फ इज अ वाइडर डेफिनेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन सेक्शन 89. व्हाट डू यू मीन बाय द बेनिफिशियल इंटरेस्ट? अगर आप देख रहे होंगे स्लाइड्स पे आपको दिख रहा होगा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सबसे बड़ा बात ये कि मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल भी इंक्लूडेड हो जाएगा through any contract, arrangement or otherwise. Or otherwise is such a broader term. Again, means it can be by way of a verbal or it can be by a mutual consent, etc. The right or entitlement of a person alone or together with any other person. Means again, खुद से या किसी और के साथ to exercise or cause to be exercised any of the rights attached to the shares. And second, the right to participate or receive dividend or other distribution in respect of shares. So that means if it satisfied both these conditions or any of these conditions, because or is there, any of these conditions, then the person will be constituted as having a beneficial interest. तो सर beneficial interest बस इतना सही होता है? Yes, beneficial interest तो इतना ही होता है. Now the law has something indirect regarding the beneficial interest. They are saying beneficial interest will not do the enough thing. You need to find out who is the significant beneficial owner. How you will find out the significant beneficial owner is that through this slide it will be clear. According to the rules, the SBO first, if अगर आप सेक्शन में जाए 90, तो 90 सेक्शंस में दिया है होल्ड्स 25% और सच अदर परसेंट. सच अदर परसेंट बोल के उन्होंने ये रूल पावर छोड़ दिया. और द मिनिस्ट्री का जब रूल्स आया 13 जून को, तो मिनिस्ट्री ने उसको 25% की जगह 10% कर दिया. तो नाउ यू विल रीड इट एज फर्स्ट कंडीशन holding 10% or such percent or 10% in the voting shares of the company. Second, if he is able to exercise significant influence over the company. अगर आपको याद हो, influence हम लोग बार बार कंपनीज एक्ट में हर जगह पढ़ते थे, करेक्ट? याद आ रहा होगा, significant influence 20% of voting rights or more. वो या फिर अगर वो एक्सरसाइज करता हो कंट्रोल ओवर द कंपनी, और पहला ही लाइन आपने पढ़ा होगा एकदम टॉप में, एक्टिंग अलोन और टुगेदर और थ्रू वन और अनदर पर्सन
और ट्रस्ट इंक्लूडिंग अ ट्रस्ट एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये देखिए अब ये बाहर तक को भी कवर कर रहा है। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद इन द पैरामीटर ऑफ इंडिया, इट इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। मीन्स अगर आप बाहर किसी एनआरआई के साथ मिलकर भी अगर होल्ड करते हैं तो देन इट इज ऑल्सो बी डीम्ड एज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। क्लियर? सो सर हम लोग देख के ये समझे कि हु इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, द वन हु होल्ड्स 10%, क्योंकि 25% हम बार बार फोकस इसलिए करा रहे हैं। एक्ट में सेक्शन 90 में 25% ही लिखा था, बट व्हेन द रूल्स केम आउट दे हैव गिवन 10%। तो 10%। सेकेंड, वो एक्सरसाइज करता हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। थर्ड, वो कंट्रोल करता हो। फोर्थ, वो एक्टिंग अलोन और टुगेदर विथ वन और मोर पर्सन हो, इंक्लूडिंग पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। एंड लास्टली, this is the important condition, the name of such person doesn't appear as a natural person on the register of members of that company। क्योंकि अगर उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आ गया तो बोलता फिर डिक्लेयर मत करो। इट्स अगेन अ वियर्ड कंसेप्ट, मिनिस्ट्री विल कम आउट विद अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। से फॉर एग्जांपल, जो अभी एग्जांपल हम दे रहे थे, ए लिमिटेड होल्ड 60% इन बी लिमिटेड, तो मैं खुद ही बोला था ना कि यू हैव टू फाइंड आउट एसबीओ। एसबीओ कैसे फाइंड आउट करोगे? ए लिमिटेड में कौन इंडिविजुअल है जो ये सारे पावर एक्सरसाइज करता है। मतलब से फॉर एग्जांपल मिस्टर राम, अगर ए लिमिटेड में वो 10% या उससे ज्यादा कंट्रोल करते हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उस कंपनी को कर सकते हैं, या फिर उनका कंट्रोल है उस कंपनी पर, तो देन मिस्टर राम विल बी डीम्ड एज ए एसबीओ ऑफ बी लिमिटेड। सर अगेन कंफ्यूज, बी लिमिटेड क्यों बोल रहे हैं? अरे तो एसबीओ तो आप फाइंड आउट बी का कर रहे हो ना, क्योंकि बी में ए लिमिटेड इज अ होल्डर, और ए लिमिटेड सिंस कंपनी है तो ए लिमिटेड होल्डर होने से आपको एक्चुअल राम की तस्वीर नहीं दिखी। तो अब एक्चुअल वो राम को फाइंड आउट करने के लिए एसबीओ रूल्स आया है कि ए लिमिटेड में कौन वो बंदा है जो 10% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्सरसाइज करता हो या होल्ड करता हो, या कौन वो बंदा है जिसका उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या कौन वो बंदा है जो कंट्रोल करता हो। क्लियर? तो मिस्टर राम विल बी द एसबीओ फॉर बी लिमिटेड। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ। अब जो अभी हम कंडीशन बता रहे थे कि नेम डजंट अपीयर, से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अगर बी लिमिटेड में ए लिमिटेड होल्ड करता है 60% और मिस्टर राम ए लिमिटेड को कंट्रोल भी करते हैं, बट मिस्टर राम भी बी में कुछ शेयर होल्ड करते हैं, से फॉर एग्जांपल 2% ही करते होंगे, और उनका नाम एज अ रजिस्टर्ड मेंबर बी लिमिटेड के खाते में लिखा हुआ है, तो एज पर दिस रूल्स मिस्टर राम विल नॉट बी required to comply with the requirement of SBO, though he will be SBO। सर अगेन ये वाला चीज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर से बताइए ना। हम बोल रहे हैं कि कंपनी बी लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अभी तक हम पढ़ रहे थे कंपनी ए लिमिटेड मेंबर है, और ए लिमिटेड में कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं मिस्टर राम, तो मिस्टर राम हुए एसबीओ बी लिमिटेड के। लेकिन अगर सपोज करिए मिस्टर राम का नाम बी लिमिटेड में भी एज अ सेपरेट मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपीयर कर रहा है, देन मिस्टर राम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसबीओ, दो ही विल बी एसबीओ। क्योंकि लॉ बोलता है जिनका नाम ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ मेंबर पे है वो एसबीओ ट्रीट नहीं किए जाएंगे। क्लियर जी? तो दिस इज व्हाट द एसबीओ कंसेप्ट इज। सर ये डिक्लेयर करने से क्या होगा? ये डिक्लेयर करने से फायदा ये होगा कि जो लोग पहले अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते थे, लाइक कंपनी बी में कंपनी ए के थ्रू होल्ड कर रखे थे बट अपना नाम नहीं बताते थे कि इनडायरेक्टली हम ही तुमको कंट्रोल करते हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। क्लियर? तो सर उसके डिस्क्लोज होने से क्या फायदा होगा? ट्रांसपेरेंसी होगी, टेक ओवर्स वगैरह नहीं हो पाएंगे, देयर विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गुड गवर्नेंस। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दिस एसबीओ रूल्स इज। तो सर सपोज करिए ये सब हो गया, अगर हमको पता चला, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में अभी तो आप बताए ए लिमिटेड कंपनी के बारे में बता रहे थे, मेरे कंपनी में शेयर होल्डर है फर्म। क्लियर? तो फर्म का कैसे पता करेंगे? फर्म में जो पार्टनर हो वो हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल बी लिमिटेड का शेयर्स होल्ड करता है कोई एबीसी फर्म, उस एबीसी फर्म में आप वो पार्टनर का नाम पता करिए जो उसका 10% कैपिटल उस फर्म का या फिर 10% प्रॉफिट शेयर करता हो। से मिस्टर राम एबीसी फर्म में 15% प्रॉफिट शेयर करते हैं 15, तो मिस्टर राम क्या हो जाएंगे? एबीसी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, और एबीसी फर्म होल्ड करता है बी लिमिटेड में 60% शेयर्स, तो मिस्टर राम विल बिकम
एसबीओ ऑफ बी लिमिटेड। सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ? एकदम क्लियर हो गया, एकदम इजी। बी लिमिटेड में अब 60% ए लिमिटेड होल्ड नहीं करके एबीसी फर्म होल्ड करता है 60%। एबीसी फर्म, तो फर्म में कैसा पता करेंगे कि एसबीओ कौन है? फर्म में आप पता करोगे वो पार्टनर जो फर्म के ऊपर 10% कैपिटल अपना कंट्रोल करता हो या फिर फर्म का 10% से ज्यादा प्रॉफिट शेयर करता हो। क्लियर? हाँ सर, अब क्लियर हुआ, वी गॉट द आइडिया। से फॉर एग्जांपल सर आप जो बोल रहे हो, अगर हम लोग को पता ही नहीं चले कि कंपनी है, ट्रस्ट फर्म है, बट हम लोग को ये पता नहीं चले कि उस कंपनी में कौन कंट्रोल करता है, तब हम लोग क्या करेंगे? से फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुबह से कि ए लिमिटेड होल्ड 60% इन बी लिमिटेड, तो सर ए लिमिटेड में जो 60% ए लिमिटेड होल्ड करता है बी में, तो ए लिमिटेड का कौन है जो बंदा वो ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल या फिर वो 10% अपना वोटिंग राइट्स वगैरह एक्सरसाइज करता है, ये पता ही नहीं चल रहा है कि ए लिमिटेड में आखिर है कौन। नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, लॉ बोलता है अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी विल बिकम एसपीओ। क्लियर? जहां कुछ भी पता नहीं चले कि कौन कंट्रोल कर रहा है, देन सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल विल बिकम द एसबीओ फॉर द पर्पस ऑफ एसबीओ। तो सर ये एसबीओ बन गए, बट एसबीओ बन के होगा क्या? पता चल गया हमको एसबीओ है, तब एसबीओ बन गए, कुछ डिक्लेरेशन करने होते हैं। एसबीओ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म कॉल्ड BEN1 बेनिफिशियल BEN1। अभी ये जो पहला डिस्क्लोजर हो रहा है वो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन करना है। 13 जून को ये नोटिफिकेशन आ गया, विद इन 90 डेज फ्रॉम द 13 जून दे हैव टू मेक अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म कॉल्ड BEN1। क्लियर? और उसके बाद जब जब चेंज होगा कुछ भी होल्डिंग में तो दे विल डिस्क्लोज इन दी BEN1, बट टाइम पीरियड हो जाएगा 30 डेज। क्लियर? सिंस पहली बार आया है तो 90 डेज है, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। सर एसबीओ बताया कंपनी को BEN1 में, कंपनी बताएगा रजिस्ट्रार को BEN2 में। कितने दिन में? अगेन 30 दिन में। एसबीओ कंपनी को, कंपनी रजिस्ट्रार को। एसबीओ कंपनी को बताएगा BEN1 में, कंपनी रजिस्ट्रार को बताएगा BEN2 में, और कंपनी एक रजिस्टर भी मेंटेन करेगा सभी एसबीओ डिक्लेरेशन का, वो होगा BEN3। तो सर ये क्या फॉर्म है सारे? यस, ये फॉर्म है। BEN3 इज अ रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स और BEN1 और 2 डिक्लेरेशन है। क्लियर? सर इसमें कुछ और भी है? यस, दिस टाइम दे हैव गिवन द कंपनी आल्सो द अपॉर्चुनिटी अंडर सेक्शन 90। द कंपनी कैन गिव अ नोटिस टू एनी पर्सन इफ द कंपनी इज हैविंग डाउट कि वो मेरा बेनिफिशियल ओनर है। हाउ द कंपनी विल गिव? एक बार यहां रुकना पड़ेगा। तो वी हैव डिस्कस BEN1 में कंपनी को दे रहा है एसबीओ, BEN2 में कंपनी दे रहा है रजिस्ट्रार को, एंड BEN3 में रजिस्टर। BEN जो हम बता रहे थे वो है कि कंपनी को इफ हैविंग अ डाउट किसी भी पर्सन पे कि वो मेरा बेनिफिशियल ओनर है, तो कंपनी उसको नोटिस देगा BEN4 में कि अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो डिक्लेयर करिए कितना होल्ड करते हो और क्या होल्ड करते हो। क्लियर? और वो 30 डेज में बाउंड है बंदा रिप्लाई करने के लिए। द पर्सन हैज टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। सर सुनिए ना, बंदा बहुत ढीठ है, नहीं रिप्लाई किया कंपनी का नोटिस का, तो कंपनी विल अप्रोच दी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT कि इसको मैंने नोटिस दी थी बट फिर भी इसने बताया नहीं। क्लियर? वो नोटिस जाएगी BEN4 में, तो कंपनी के पास भी पावर है टू इन्वेस्टिगेट द रियल ओनर। सो बेसिकली इन शॉर्ट, एसबीओ इज टू फाइंड आउट हु इज द एक्चुअल ओनर बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे है कौन, टू फाइंड आउट द पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ beneficial owner for the company. Clear? So this is in the things about the SBO, significant beneficial ownership. Thank you.